फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी, तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि 5 स्टार होटल है या फिर एक स्कूल है। हम सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज जस्ट बेस्ड ऑन वन एग्जाम। रोट लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे पोएट्री होती है क्लास 1 में, तितली उड़ी बस में चढ़ी। अगर तितली उड़ रही है तो बस में क्यों चढ़ रही है? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की या पेरेंट्स की, कि वो चीटिंग ना करें? यू शुड नॉट बी डिफेंसिव। कौन सा स्कूल है जो टॉपर्स के अलावा किसी को सेलिब्रेट करता है? अगर मेरे कोलीग के बच्चे का 90% आया है तो तुम्हारा 95 तो आना ही चाहिए। तो आपको लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन किसी स्टूडेंट का ट्रू पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग सिस्टम में सबसे वाहियात चीज़ क्या है? क्या सोचना है या हाउ टू थिंक होना चाहिए rather than what to think। बच्चों में भी स्ट्रेस हो रहा है। Of course। And I want to understand that who is more responsible, like teachers, parents, or the education system itself? मार्क्स एंड ग्रेड्स सिर्फ पढ़ो। They are focusing more on sales, less on education. बच्चों को कोचिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है? Why should I say sorry? Hello and welcome, guys, to the show. The name of the show is The Purpose That Matters. And today we have Nadia ma'am with us. And Nadia ma'am has been working in healthcare industry, and she has been educator, inspirational speaker. And today she is with us regarding a conversation. We are going to focus on schools and development of schools. So hi Nadia ma'am, how are you? Hi, hello. Thank you for calling me and having me here. Yeah, I'm very glad, and I really like the title of the podcast, The Purpose That Matters, because in each and every stage of life, everything should be done that has some purpose in it. Yes ma'am. Yeah. So you're from school background, right? And like you manage school. So what do you think the real purpose of school is? I am currently the admin head, or you can call the administrative officer for Sri Krishna Academy. Yes ma'am. It is an it is an school basically till class 12th, which is a school of ITM that you must have heard of in Gida. Yeah. So what you were asking, right? The real purpose of school. Yeah. The real purpose of school, if you talk about Rapanjay, अक्सर आपने सुना होगा कि real purpose लोग मानते हैं कि just to acquire good marks. Yes ma'am. And eventually, there is one particular examination which is important. Or then, eventually you turn up getting a good job. Yes. But in my perspective is real education is not just to get good marks or secure some, some private or government job. Basically, it is much more than that. We have to emphasize and educate children actually to become good human beings. Okay. We are actually not, we do not want in education line, we do not want walking encyclopedias. If we only talk about the information, वो तो आपको स्मार्टफोन पे भी मिल जाती है एक सेकंड में, राइट? सो एजुकेटर्स का या स्कूल का ये पर्पस होना चाहिए कि कैसे वो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पे जोर दें, और वो बच्चे को क्या सोचना है या हाउ टू थिंक होना चाहिए rather than what to think. Exactly. Yeah. So ये पर्पस होना चाहिए एक्चुअली एजुकेशन का these days, which is entirely shifted to rote learning. Education should actually move from rote learning to real learning. Okay. Yeah. So do you think school are really focusing on making students learn how to think? Because they are giving them particular syllabus, and then they are giving them particular homeworks, and they have to do like that. They have to follow the certain routine. They are supposed to spend their 7 to 8 hours in school, right? And we force them what to think, not how to think. Yeah. And how you guys are changing it? Yes. If you talk about what we are doing at Sri Krishna Academy, Yes. so this is the change like we are trying to put in forward, Yeah. क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है, जैसे कि मैंने बात भी किया, कि we are not actually training children how to think, because एक fixed syllabus है. तो हम को जोर देना चाहिए कॉन्सेप्चुअलाइज लर्निंग पे. Okay. कोई भी सिलेबस अगर बनाया है किसी भी बोर्ड ने या किसी भी राइटर ने कोई चैप्टर लिखा है, तो उसका एम्फेसिस या उसका पर्पस था टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कंटेंट इन इट. लेकिन स्कूल में मैक्सिमम टाइम पे टू इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई एम नॉट जस्ट टारगेटिंग एनी पेरेंट. हम पेरेंट्स भी जब होते हैं तो वी ओनली टारगेट अबाउट व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स गेटिंग गुड ग्रेड्स और गुड मार्क्स आउट ऑफ इट. तो जब ये होगा तो कहीं ना कहीं हम रोट लर्निंग को प्रमोट करते हैं, ना कि रियल लर्निंग को. तो कॉन्सेप्चुलाइज लर्निंग कभी भी मार्क्स पे डिपेंड नहीं कर सकती है. एज यू कैन सी, यू हैव सीन
many average students, becoming great entrepreneurs. Yes, ma'am. Because उनकी जो curiosity थी towards learning, उनकी जो innovation थी, critical thinking थी, वो ही काम आई उनको एक stage तक ले जाने पे, ना कि marks. For example, अगर किसी student का 95% marks तो आया है, लेकिन he is not kind enough to others or he does not have the problem solving skills, तो वो कैसे उसको entirely life में काम आएगा एक अच्छा citizen बनने में. तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, होमवर्क के लिए डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल होमवर्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न वॉट एवर यू हैव लर्नड इन क्लास, अगर आप उसको रिपीट करेंगे तभी आप उसको एंड्योर कर पाएंगे और उसको प्रोसेस कर पाएंगे. तो कहीं ना कहीं उस तरीके का होमवर्क होना चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो, रादर देन अगेन आई विल से कि वो एक कुछ भी मगअप करके और उसको लिखने का वाला नहीं होना चाहिए. एंड ये जिस चीज़ के तरफ हमारी सोसाइटी जा रही है, मार्क्स एंड ग्रेड्स एंड ये सारी चीज़ें बच्चों में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी ला रही हैं, और उसकी वजह से अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है तो फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है. और कहीं ना कहीं हम एक रैट रेस में भाग रहे हैं उस चीज़ में. तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक क्लीशे है कि कि अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे तो ही वो बच्चा एक सक्सेसफुल इंसान बनेगा लाइफ में. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. ऐसा इसलिए भी ज़रूरी नहीं होता है, आपने देखा होगा आजकल द करंट सिचुएशन, किड्स आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स. इफ़ यू सी most of the average students are lying between 80 to 95 or 99% marks. But are they getting through the competitive exams? No. So that means कि concept की कमी थी. अगर आपको पूरे कोर्स का या पूरे सिलेबस का 90% मार्क्स आ रहा है, यानी आप उस पूरे सिलेबस का 90% कोर्स जानते हैं, यही उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए. लेकिन उस हिसाब से आप सिलेक्शन देखें तो नहीं होते हैं. तो वो ही हमको सोच के चेंज करने की ज़रूरत है कि जितना आए वो प्रॉपर आए, वो पूरा कंटेंट आए, और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज वे में हम लर्न करें. तो आई विल ओनली से माई लास्ट लाइन विल बी एजुकेशन शुड मूव फ्रॉम रोट लर्निंग टू रियल लर्निंग. ओके, टॉकिंग अबाउट द रैट रेस, राइट. मेरे पास एक क्यूरियोसिटी थी बचपन से ही. एंड मैं बचपन में थोड़ा डरता तो मैं पूछ नहीं पाता किसी टीचर से, बट यू आर हियर तो आई आस्क यू. रोट लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे पोइट्री होती है क्लास 1 में, तितली उड़ी बस में चढ़ी. अगर तितली उड़ रही है तो बस में क्यों चढ़ रही है? तो नो वन इज आस्किंग क्वेश्चन. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. क्यूरियोसिटी डेवलप ही तो करना है. अभी क्या हो रहा है, जितने भी राइम्स में बुक है वो बच्चे उसको रटाया जाता है और उसको वो रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, I will give you just a very short example that happened in my school. We were actually teaching our skills. Always our teachers in our school, we talk out of syllabus also, so that we can promote that curiosity, बच्चों में, और how to think वाली जो बात हम कर रहे हैं. तो out of book में हम उनको कुछ magic words सिखा रहे थे. ठीक है, suppose nursery, LKG and UKG students. तो उनको हम शूट कर रहे थे, हम अपने सोशल मीडिया पेज पे उनको शेयर भी करते थे. तो मैजिक वर्ड्स लाइक व्हेन टू से थैंक यू, व्हेन टू से एक्सक्यूज मी, व्हेन टू से कर्टियस बनने चाहिए बच्चे. वो ग्रेट, बाद में आप किसी क्लास में आप उनको वो चीज़ सिखा नहीं सकते हैं. वो चीज़ इनकलकेट करनी पड़ती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ईयर्स से. ठीक है, तो हमने कुछ मैजिक वर्ड सिलेक्ट किए एंड वन ऑफ आवर टीचर्स केम टू मी कि वील शूट अ वीडियो आउट ऑफ इट. दे वर 5 little kindergarten students, bright students with us and in Sri Krishna Academy, because we are actually inculcating those kind of curious behavior in them. बहुत inquisitive है हमारे बच्चे, बहुत chatterbox हैं. Specifically अगर आप देखें तो वो अपने आप को express अच्छा करते हैं. तो उसमें से एक word निकल के आया sorry. ठीक है, that is also a magic word and that is just a simple word. उन्होंने उसको बोला. अब एक बच्ची के ऊपर आया and she said, why should I say sorry? I have not done anything wrong. I really like that thing, because उस चीज़ में यही बात जो अभी आपने की, आई थिंक आपको आंसर मिला होगा कि वो उसने वही नहीं बोला जो हम उसको बोलने को कह रहे थे. She used her mind and asked back कि why should I say sorry when I have not done anything wrong? So this should be actually what we should be doing it with all our students. हमको बच्चों को क्या सही क्या गलत सिखाना है. और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए कि मैंने अभी एक बहुत लर्नेड इंसान से ये एग्जाम्पल सुना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा.
जो हम अपने स्कूल में पेरेंट्स को भी सिखाते हैं. नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं अभी बहुत छोटा है, अभी थोड़े दिन में वो थोड़ा अडाप्ट कर लेगा उस सिचुएशन को. अडाप्ट जितने दिन भी आप उसको वो लिवरेज देंगे, वो उतने दिन तक अडाप्ट नहीं करेगा. जब भी आप छोड़ेंगे वो उसका फर्स्ट डे होगा अडेप्टेशन का. तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको 1 महीने बाद वो फर्स्ट डे लाना चाहते हैं कि फर्स्ट डे को ही फर्स्ट डे लाना चाहते हैं. राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को चीज़ें सिखाए. फॉर एग्जाम्पल एक रोड क्रॉस करना में अगर आप छोटे बच्चे को रोड क्रॉस कराते हैं तो हर टाइम पे माँ बाप के लिए वो बच्चा अभी छोटा ही है, वो उसको हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराता है. ठीक है, आप वो बात एक बार करिए, 10 टाइम्स करिए, 100 टाइम्स करिए. लेकिन जब भी आप 101 टाइम पे उसको अकेला छोड़ेंगे, बिकॉज यू हैव नॉट टॉट योर चाइल्ड कैसे करना था, आपने उसको हेल्प कर दिया हर बार, तो वो 100वें दिन भी वो उसका फर्स्ट डे होगा. तो पेरेंट्स को और एजुकेटर्स को और टीचर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि वी शुड यूज देयर माइंड्स फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर लर्निंग, rather than following your footsteps blindly. तो ये बहुत important है. Okay. And most importantly, when I see education system, right, I see that most of the schools that are teaching, they are focusing only on examination and they're not preparing student for life. So why this is happening in the school itself? Because mindset वैसा है ना, हम सोच रहे हैं कि education is just based on one exam. The motive is to pass that one exam. Academic excellence से ही बच्चा सक्सेसफुल होता है क्या? नहीं. नो. बिकॉज उसका एक एजुकेशन में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए. वी शुड टीच आवर स्टूडेंट टू एक्सप्लोर देयर टैलेंट्स at the same time maintaining that academic excellence also. Some children would be very good in academics, some. If I take one example, if we judge a fish by climbing a tree, so will it be successful? No, never. No. So that doesn't mean that the fish doesn't have a unique property. Every child has a unique property, a unique strength. We need to actually explore that along with the academics. Do that? Yes, because आप जितना ज़्यादा उनके साथ उनके माइंड को खंगालेंगे एक तो तरह एक सिस्टम स्कूल में कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि हमें स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बल्कि वो क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे स्कूल्स में जहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, या पेरेंट्स के मन में वो चीज़ डाल दी है. कई बार पेरेंट्स कहते हैं फला स्कूल में या ऐसे करके ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ही होती रहती हैं, या आप स्पोर्ट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो सिर्फ पढ़ाई. बहुत सारे, आई वुड नॉट टेक द नेम, बट दे आर बिग ब्रांड्स ऑफ स्कूल्स इन गोरखपुर जहाँ पर ओनली एकेडमिक्स है. ओनली एकेडमिक्स मतलब सिर्फ पढ़ो, दैट्स इट. बट दैट इज नॉट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? वही मैंने बात बोली कि एक मछली को अगर हम पेड़ चढ़ने से उसकी काबिलियत नापेंगे तो वो कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं. ठीक है. तो हम कोई बच्चा एकेडमिक एक्सीलेंस है किसी में, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, किसी की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी का हमारा स्कूल में एक बच्चा है वो एक्टिविटी करता है, ही इज अ वेरी ग्रेट, ही कैन बी अ वेरी ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन, व्हाई नॉट, दैट इज आल्सो अ प्रोफेशन. किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो ही कैन बी अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर, और ही कैन बी अ वेरी गुड मे बी एज अ होस्ट. आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर. तो ये चीज़ों को नापना भी एक पेरेंट की, एक एजुकेटर की, एक टीचर, एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी डू टेक वेरी गुड केयर एट आवर स्कूल एट श्री कृष्णा अकेडमी कि हम उसको प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर प्लेस देते हैं हर चीज़ को. बी इट आर्ट, बी इट थिएटर, बी इट सिंगिंग, बी इट academics, be it music, be it dancing, be it sports, be it anything. So, like from your school, any musician has come out, like musician or cricketer or any big shot? See, our school is not that old कि हम कोई इतने बड़े alumni base पे पहुँचे हैं, लेकिन definitely अब हम उस चीज़ को ज़्यादा inculcate कर रहे हैं, because as you know, I have joined just 2 years back, and we have a very focusing and very dynamic principal also with us, with more than 30 years of experience, Dr. Himlata Tiwari, and we are learning a lot from her, and उनसे ही हमने ये सीखा है कि हर फील्ड में कैसे हमको बच्चे को एक्सेल कराना है at the same time, and kids are very happily doing it. Stress busters. Suppose if I take your example, आप किसी जॉब पे जा रहे हैं but you are stressed, so can you be able to perform better? No.
सो आपको बच्चे को सिर्फ पेरेंट्स हो या टीचर्स हो सिर्फ ये पूछते हैं हाउ मच ग्रेड्स डिड यू गेट, कभी कोई ये नहीं पूछता व्हाट डिड यू लर्न टुडे, क्या नया सीखा आपने आज. No one asks. हाँ, नो वन आस्क्स दैट कितना ग्रेड आया कितना मार्क्स आया, बट वही एक शैलो पैरामीटर है टू जज और टू सी दी To express their, आप मुझे बताइए 45 स्टूडेंट्स अगर एक क्लास में हैं तो क्या सब टॉप करेंगे? नहीं. नहीं, लेकिन हर एक में एक यूनिक स्किल, एक यूनिक प्रॉपर्टी तो होगी. Definitely. लेकिन जो स्कूल सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की बात करते हैं तो क्या वो उस स्किल को निकाल के एक्सप्लोर करके निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे. हो सकता है वो बच्चा जो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था उसके अंदर कोई एक ऐसा हिडन टैलेंट था, जब हमने उसको एक्सप्लोर किया Yes. तो उसका मन खुश हुआ और वो एकेडमिक्स में भी बेटर परफॉर्म करने लगा. एंड वी हैव सीन इट. Yeah. या Yeah. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes. उस तरीके से काम करना थोड़ा सा डिफरेंट. वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड. पेरेंट्स भी बच्चों को एक ट्रॉफी की तरह यूज कर रहे हैं. अगर मेरे कोलीग के बच्चे का 90% आया है तो तुम्हारा 95 तो आना ही चाहिए. Okay. दिस इज नॉट द पैरामीटर. Yeah. जस्ट सी कि आपके बच्चे की लर्निंग कितनी डेवलप हुई है, वो कितना उसके स्किल्स कितने अपडेट हुए हैं, वो कितना पॉलिश्ड हुआ है, उसका फोकस, विजन, कॉन्फिडेंस, कितना कंपैशनेट हुआ है, वो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट And है. as a result of this thing, right, means a lot of parents, a lot of teachers and institutes are focusing primarily on marks, ranks, and jobs. The system of education has become secondary. Right? Education becomes secondary, and now the things are that they have to score first rank, they have to get 95%. This has become the primary focus. मैम हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो आपको लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन किसी स्टूडेंट का ट्रू पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? They do they have that? आई थिंक इट इज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एंड आंसर Yeah. कि डेफिनेटली नहीं. कोई भी एक एग्ज़ाम, कोई भी एक दिन किसी बच्चे का उसका मेंटल स्ट्रेस किस लेवल पे है, बिकॉज स्ट्रेस डेफिनेटली एकेडमिक स्ट्रेस आई वुड नॉट डिनाई कि बहुत ज़्यादा है. और एक बोर्ड एग्ज़ाम को और एक एक बिग थिंग बना करके बच्चों को प्रेशराइज करते पेरेंट्स भी टीचर्स भी रेपिटेटिवली, तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से तो डिफ़र करेगा. कुछ बच्चे हैं जो उस सिचुएशन में और अच्छा परफॉर्म करते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रही थी कि एवरी बच्चा, एवरी चाइल्ड हैज़ गॉट अ यूनिक प्रॉपर्टी. कुछ बच्चे हैं अगर आप उनको मोटिवेट करो तो वो मोटिवेट होते हैं. हाँ. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप डीमोटिवेट करो तो वो मोटिवेट होते हैं. हाँ. यस, आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको अगर हम कहते हैं ना अरे तुम नहीं कर पाओगे, तो वो करके दिखाता है. और कुछ को अगर हम कह दें कि तुम नहीं कर पाओगे तो वो कर भी सकता था, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे बात करनी है बच्चे से, क्या बात करनी है. हर बच्चे से अलग बात करनी होती है. एंड येस, वी आर वेरी प्राउड टू से कि हमारे स्कूल में रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड कि हम उस बच्चे को पहचान सकें और उसके हिसाब से हम उसको एनालाइज कर सकें. तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है उनके ओवरऑल पोटेंशियल. Again, you have pointed out a really very important point is that कि stress की बात हम कर रहे हैं. बच्चों में भी stress हो रहा है. Of course. And I want to understand that who is more responsible? Like everyone is responsible, but ज़्यादा responsible कौन है? Teachers, parents, or the education system itself? See, we have heard this बचपन से कि जो पेरेंट्स होते हैं दे आर द फर्स्ट टीचर्स. Yes. बट हमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो टीचर्स हैं वो सेकंड पेरेंट्स बन जाएं. हाँ. जब ऐसा हो जाएगा तो बच्चे हेजिटेट नहीं करेंगे कोई भी चीज़ पूछने के लिए. द मोर दे विल आस्क क्वेश्चंस, उनके मोर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मोर उनका जो प्रेशर है वो लो डाउन होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ द पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स, टीचर शुड बिकम द सेकंड पेरेंट एट स्कूल. तो जिससे कि बच्चा अपने कैसे माँ से हर बात कर पाता है, उसी तरह अगर हर बात वो कर पाए अपने टीचर से विदाउट फियर, एनी क्वेश्चन अगर वो पूछे तो क्या होगा. आपको 10 चीज़ें थी आपको नहीं आ रही थी, आपने पूछा विदाउट फियर, वो आने लगी आपको. ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस लोअर डाउन होगा. ठीक, किसी भी बच्चे को स्ट्रेस कब होता है? जब उसको कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती है या टफ है. टफ और इजी का क्या डेफिनेशन है? नथिंग. Easy is something that you know. Tough is something that you don't know. Great. It is as simple as that. There is no parameter कि ये tough है ये easy है. जो आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो मुश्किल है. As simple as that. तो जो नहीं आता है अगर वो पूछ लेगा और टीचर उसको समझा देगा तो उसका डेफिनेटली प्रेशर कम हो जाएगा. तो प्रेशर तो बहुत है.
उसके लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एज आई सेड कि हमने बोला कि बस पेरेंट्स और टीचर्स एक और इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि वी शुड एक्चुअली बी पार्टनर्स, नॉट राइवल्स, या फिर ब्लेमिंग गेम नहीं होना चाहिए. नॉर्मली स्कूल्स में हमने देखा है, अगर बच्चे का कोई पॉइंट है, मान लीजिए आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे को मैं पहले से नहीं जान रही थी ना मैं आपको जान रही हूँ, अगर मैं बच्चे के बारे में कोई पॉइंट के लिए आपको बुला रही हूँ, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू शुड नॉट बी डिफेंसिव. मेरा बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता. हर माँ को लगता है कि उसका बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, वो किसी के तो बच्चे हैं, किसी का तो बेटा हाँ कर रहा है. तो हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट अगर हम नहीं करेंगे तो डिनाइल इज द फर्स्ट फेलियर एट दैट स्टेज. नंबर 1. ठीक. नंबर 2, अगर पेरेंट आकर के कुछ बोल रहा है, वी आर इन द सेम बोट. द स्कूल शुड नॉट ऑल्सो बी डिफेंसिव ऑल द टाइम. यू नो, यहाँ तो ऐसा नहीं होता है. आपके बच्चे ने घर पे सीखा होगा. नो, वी शुड बी इन द सेम टीम. तभी हम बच्चे को सेम एथिक्स और सेम मैसेज दे पाएंगे, एंड देन ही विल बिकम अ wholesome, you know, good human being, which is very. And one more thing out of this conversation कि जब हम बात कर रहे हैं कि टॉपर्स और कोई सिर्फ मतलब लोग टॉपर्स पे ही फोकस करते हैं, राइट, द क्वेश्चन कम्स दैट कि कौन सा स्कूल है जो टॉपर्स के अलावा किसी को सेलिब्रेट करता है. फॉर एग्जांपल लीडरशिप क्वालिटी है किसी बच्चे में काइंडनेस है, राइट, कोई बच्चा बहुत पोलाइट है, तो स्कूल डू नॉट सेलिब्रेट इट, है ना, उसके लिए कोई रैंकिंग नहीं होती है. नहीं, ऐसा हम तो नहीं कहेंगे, बिकॉज वी एक्चुअली हैव मेनी कॉम्पिटिशन अराउंड द ईयर जो कि डिफरेंट टैलेंट्स पे बेस होते हैं. तो डेफिनेटली उसके हिसाब से जिसमें वो चीज़ होगी वो एक्सेल करता है. और रही बात टॉपर्स की, टॉपर्स में वही तो हम ये शुरू से बात कर रहे हैं डिस्कशन में कि हर टॉपर क्या कंपटीशन में सेलेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा. नहीं, तो वो फिर हर टॉपर कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं हो रहा है, और अगर मीडियोकर बच्चा हो रहा है तो सक्सेसफुल इवेंचुअली उसी को माना जाएगा ना, जो मीडियोकर था, जिसने कम समझा लेकिन ठीक से समझा, रादर देन वही रोट लर्निंग, हाँ, वो चीज़ करके. सो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको. सपोज कोई भी टॉपिक उठा लीजिए. सपोज आजकल स्कूल्स में क्या होता है, मैक्सिमम स्कूल्स में, और पेरेंट्स भी करते हैं, जो सिलेबस है उस सिलेबस को अगर पूरा अंडरस्टैंड करना है बच्चे को, उसको डेली बेसिस पे उस लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, एग्जामिनेशन टाइम में भी सिर्फ बच्चे पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं. द रीज़न बिहाइंड इज कि स्कूल्स और टीचर्स जो हैं वो एक सेट पैटर्न ऑफ पेपर बनाते हैं जो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट के नाम पे बच्चों को बता दिया जाता है, और बच्चे उसको एग्जाम में लिख के अच्छे मार्क्स ले आते हैं. बिकॉज जब तक आपके बच्चे का स्कूल में अच्छा मार्क्स आ रहा है वो स्कूल आपके लिए अच्छा है. और टीचर्स पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में कि आपके स्कूल का, आपके क्लास का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप अच्छे टीचर हैं. ठीक, लेकिन अगर आपने एक सेट ऑफ क्वेश्चन ही बच्चे को पूछ लिया, उससे उसकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि हमने फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है जो हमने क्लास 3-4 में बच्चे को पढ़ाना चाहा. इट इज़ a process by which the plant make their own food by the help of sunlight, water and air, right? अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस थे जो बुक के पीछे हैं, और हमने उसको मे बी राइट द फंक्शंस ऑफ रूट पढ़ा दिया, और उसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और उसको एग्जाम में लिख भी दिया. ठीक है, लेकिन उसने जो पर्पस था, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम का हो कि हम उसे फोटोसिंथेसिस पढ़ाना चाह रहे थे पूरा, तो उसने सिर्फ फंक्शंस ऑफ रूट तो नहीं मैटर करेगा, उसमें फंक्शंस ऑफ लीव्स भी कुछ होगा, फंक्शंस ऑफ स्टेम भी कुछ होगा, वो उसने नहीं पढ़ा. बिकॉज जब तक हम इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस पुट अप नहीं करेंगे, उससे बच्चे को भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मुझे पूरा कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ना है. टीचर के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उसे पूरा कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ाना है. और इवेंचुअली जब आगे जाके वो कोई भी एग्जाम देगा तो ऑब्वियसली बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग ही काम आएगी. तो डेफिनेटली ये पैटर्न ऑफ एजुकेशन अगर हो जाए, लर्निंग हो जाए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ, उसमें मार्क्स ज़रूर थोड़े कम आएंगे, बिकॉज देन इट विल बी अ वेरी वास्ट थिंग. इट इज़ नॉट अ सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस जो उसको रट के एग्जाम में लिखना है. वो कहीं से भी पूछ सकते हैं वाली बात जब आएगी तो डेफिनेटली मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो सॉलिड मार्क्स होंगे उसके, एंड डेफिनेटली वो चीज़ उसको सक्सेस की तरफ ले जाएगी बच्चे को. So these are the things that we want in our education system. These are the things that ongoing into our education system. But there is one more problem, right? जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कई सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी रिसेंटली स्कूल्स की,
है ना, प्रीमियम स्कूलिंग हो गया, आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि 5 स्टार होटल है या फिर एक स्कूल है। तो इसमें पेरेंट की भी तो कहीं ना कहीं आप वो समझिए ना, पेरेंट्स को ऑब्जेक्ट तो कर रहे हैं कि वो फीस बढ़ रही है, लेकिन पेरेंट्स को सर्विसेज भी तो ऐसी ही डिमांड कर रहे हैं वो कि जैसे 5 स्टार होटल हो या क्लब हो। आई एक्चुअली टेक मैनी काउंसलिंग ऑल्सो, एडमिशन के लिए लोग आते हैं, so I talk about laboratories, I talk about speech therapy, I talk about school environment, I talk about infrastructure, I talk about games and sports and other activities. बीच में पेरेंट पूछते हैं मैम स्विमिंग पूल है क्या? This is not a club. For swimming, always remember these are, जितनी भी चीज़ों का मैंने नाम लिया वो feathers हैं, हाँ, added feathers. But एक चीज़ जिसके लिए मेनली आप स्कूल जाते हैं वो है लर्निंग। हाँ, ठीक, लर्निंग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक हो, आर्ट हो, क्रिएटिविटी हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप कहीं तो उसको एक ब्रेक देंगे ना, आपको सब कुछ चाहिए जैसे आपने कहा एक 5 स्टार होटल की तरह, तो वो चीज़ जब तक पेरेंट डिमांड करेंगे, डेफिनेटली हर चीज़ में पैसा लगता है। आज कौन सी चीज़ है जो महंगी नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये एक अलग डिबेट है। हाँ, डेफिनेटली इतना ओवर एंड अबव नहीं होना चाहिए। हमारे आप स्कूल की बात करें, यू कंपेयर आवर स्कूल विद मैनी अदर स्कूल्स, आपको लगेगा कि वी आर वर्थ इट। और कभी कभी तो पेरेंट्स, हम कुछ फंक्शंस करते हैं, भी रिसेंटली हमने समर कैंप किया था, तो जो हमने चार्ज किया, बहुत से पेरेंट्स ने बोला कि इतने में कैसे किया आपने। सो आर इज़ बेसिकली एन एजुकेशनल ट्रस्ट, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्राइजिंग हाई बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज़ एक्चुअली वर्थ व्हाट वी आर गिविंग आवर स्टूडेंट्स। बट डेफिनेटली कुछ जगह ऐसा है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ, अभी पार्लियामेंट में भी ये बात उठी थी कि हर साल एडमिशन फ़ी क्यों ली जाती है बच्चे का। हम एक बच्चे का एडमिशन कराया तो वो हर साल क्यों एडमिशन फ़ी पे करेगा? डेफिनेटली आई अग्री विद दैट। हम एक ही बार एडमिशन फ़ी लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नॉट एवरी ईयर। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली एक चीज़ और है, पेरेंट्स को ये भी देखना चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन डजंट डिपेंड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप शायद ना समझे हो मेरी बात, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी कोर्स है, एक ट्रेन टीचर है, आई अग्री, लेकिन अगर हम उसको बार बार आप देखते हैं ना, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, अपलिफ्ट हो रही हैं, तो अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे बार बार टीचर्स को, तो वो बेटर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। तो इट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द पेरेंट्स आर पेइंग, समटाइम्स टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, जो ट्रेनिंग करने के लिए रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, वो कितने अच्छे हैं या कितने नहीं अच्छे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कॉस्टिंग। आप कुछ भी, आप अपने बच्चे को कपड़ा दिलाने ले जाते हैं, आपको एसी खरीदते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि जो बेस्ट हो वो हम लें, जो वर्थ हो, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब जैसे मैंने इजी और डिफ़िकल्ट पे कहा था, उसी तरह मैं सस्ते और महंगे पे बोलूँगी। नहीं, इट्स नॉट ओनली अबाउट अफोर्डिंग। समटाइम्स देखने में दो चीज़ एक जैसी लगेगी। सपोज यू आर वेयरिंग अ ब्लेजर, आपका एक ब्रांड का होगा, तो हो सकता है 10 ईयर्स के बाद भी यही शीन और यही ड्यूरेबिलिटी हो। और समटाइम्स एक कोई शर्ट हो जो कि कोई नॉन ब्रांडेड है, या मान लीजिए कि कहीं आपने लोकली ले लिया है एंड यू डोंट ट्रस्ट दैट पर्टिकुलरली मेकर, हो सकता है कि वॉश करने के बाद आपकी दोबारा ना यूज़ हो, तो वो जो शर्ट थी वो 500 रुपीज़ की थी, जो ब्रांडेड थी मान लीजिए 2000 की थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इन वन डे आपके बाद दोबारा नहीं पहनी आपने, तो उसका कॉस्ट आया 500 रुपीज़। और जो 2000 की थी उसको आप 10 ईयर्स से पहन रहे हैं, तो अब आप ही जज करिए कि कौन सा महंगा पड़ा आपको। तो वो एक अलग डिबेट है, सस्ता महंगा मैं नहीं जाऊंगी, बट डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए पेरेंट्स को कि वो वर्थ है कि नहीं वो चीज़। अगेन मैं एक क्वेश्चन और पेरेंट्स के साइड से ही पूछना चाहूँगा, एंड आई नॉट ब्लेमिंग एनीवन, नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर स्कूल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिस्टम टू द मैनेजमेंट, राइट, कि जो एक समझदार इंसान है। तो मैंने क्या देखा है कि स्कूल्स अपने ड्रेस सेल करते हैं, स्कूल्स अपने बुक सेल करते हैं, स्कूल हर एक चीज़ सेल कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वो बच्चे जो है एडमिशन लेके जो पढ़ने आए उनके कस्टमर हो गए। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, है ना, क्योंकि किताब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बट दे आर फोकसिंग मोर ऑन सेल्स, लेस ऑन एजुकेशन। व्हाट डू यू थिंक? इसका आंसर मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगी क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, आपने और भी स्कूल्स देखे होंगे। हाँ, मैंने और स्कूल्स देखे हैं, तो डेफिनेटली उसका आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली बुक्स आप कहीं से भी ले लें, लेकिन जो करिकुलम हम चलाएंगे वही
जो बेटर हमने सोचा है वो पेरेंट्स खरीदते हैं। लेकिन नोटबुक्स का ऐसा नहीं होना चाहिए। नोटबुक्स जहाँ से पेरेंट्स को सस्ती मिले, स्टेशनरी जहाँ से पेरेंट्स को सस्ती मिले वो कर लेना चाहिए। बस हम ये बता सकते हैं कि किस तरह की नोटबुक होगी, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है स्कूल में। कि कोई बड़े बनने लिख रहा है। हाँ। और आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन क्योंकि मैम अभी रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट में एक रूल आया था कि स्कूल अपने किताबें खुद नहीं बेचेंगे। अगर उनको बेचना भी है तो ये बहुत पहले से है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, ये सीबीएसई में बहुत पहले से है। ट्रेंड अभी नहीं, हाँ वो ट्रेंड है, क्योंकि वो चीज़ें जब एक मुहिम चलती है तो वो चीज़ आ जाती है। बट ये बहुत पहले से है सीबीएसई की तरफ से कि स्कूल प्रेमिसेस में आपको बुक सेलिंग या यूनिफॉर्म सेलिंग नहीं होती है। समटाइम्स हमारे यहाँ पर पेरेंट्स खुद रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि आवर स्कूल इज़ लोकेटेड इन गीरा, राइट। तो वहाँ पर अब गोरखपुर जा कर के अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को परचेज करें तो कोई भी वेंडर को आउटसाइड स्कूल प्रेमिसेस कभी पेरेंट के कहने पर वो दिया जा सकता है कि वो वहाँ से परचेज कर ले। बट डेफिनेटली यू कैन आस्क एनी ऑफ आवर पेरेंट्स, दे विल से कि हम हमेशा कहते हैं नोटबुक्स और स्टेशनरी आपको जहाँ से सही लगे हम वहाँ से परचेज कर लीजिए। तो जो लोग श्री कृष्णा में पढ़ते हैं प्लीज कमेंट में लेट मी नो कि हाँ प्लीज हमारे स्कूल में ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल, स्टेशनरी और नोटबुक्स हम आपको बोलते हैं कि आप चाहें तो जहाँ से भी परचेज कर लें, वो कितनी क्या लगेगी उसकी लिस्ट हम दे देते हैं। इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, इतने ट्रेन टीचर हैं और बच्चा 7 से 8 घंटे स्कूल में दे रहा है, उसके बाद ही बच्चों को कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कोचिंग की ज़रूरत कभी भी स्कूल नहीं प्रमोट करता। हाँ ठीक, इसमें मैं आपको बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एक इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि बच्चों को इतना ओपन होना चाहिए कि वो अपने क्वेरी स्कूल में सॉल्व करें। आप हमारे पेरेंट्स को भी हम ये बोलते हैं, डेफिनेटली आजकल एक ट्रेंड है, जब हम लोग पढ़ते थे तो जो ट्यूशन जाता था वो छुप के जाता था, बिकॉज इट वाज अ काइंड ऑफ शेम कि इनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे इसलिए वो ट्यूशन जा रहा है। लेकिन आज इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमारा बच्चा कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो चीज़ को तो मैं नहीं अग्री करती हूँ, नहीं सही मानती हूँ, इसलिए क्योंकि वो स्कूल में जाया और वो कुछ मगअप करके आया, कुछ लर्न करके, फिर वो क्लैश भी हो सकता है। जो ट्यूशन जा रहा है वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैश भी हो सकता है, प्लस वो उनसे भी कुछ सीख के आया, बट वो जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक वो उसके कैसे काम आएगी, इसीलिए ये फेलियर हो रहा है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी का टाइम मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हायर क्लासेस में डेफिनेटली अगर बच्चे को कोई क्वेरी है तो सबसे पहले तो हर स्कूल में, मैक्सिमम अच्छे स्कूल्स में स्टे बैक होता है, टीचर्स होते हैं, वो आपको कभी मना नहीं करते अगर आप उनसे क्वेरी पूछें। और मैं एक मैसेज ब्रॉड एंड क्लियर पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, स्पेसिफिकली क्लास 8 तक, जब बच्चों की क्लास छोटी होती है, आप उनको हैंडीकैप मत बनाइए। कोचिंग से कैसे हैंडीकैप बनते हैं आप सुनिएगा मुझे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को ही ले लीजिए, अगर आपको लगे कि कोई घर पे मुझे 1-on-1 पढ़ाने के लिए आएगा तो आप क्यों ध्यान देंगे क्लास में? बिल्कुल बिल्कुल, अग्री विद दैट। हाँ, तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बच्चा मिस्चीवियस होगा या वो कोई बदमाशी कर रहा होगा क्लास में या डिस्टर्ब कर रहा होगा या डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा, नहीं, वो चुपचाप भी बैठा है, बोर्ड की तरफ भी देख रहा है, तो भी वो कुछ भी ग्रास्प नहीं कर रहा है, कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा है, बिकॉज उसे पता है कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड कि मेरे घर पे कोई 1-to-1 आएगा मुझे पढ़ाने के लिए। तो वाई यू वॉन्ट टू डू दैट? तो आई वुड अपील एवरी पेरेंट, और प्लीज़ ये मत कहिएगा, बहुत सारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं आके कि नहीं हमारी वाइफ नहीं देख, मेरे पास तो टाइम नहीं है और वाइफ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है या नहीं देख पाती हैं। आई डोंट अग्री दैट। अगर नहीं भी पढ़ी लिखी है ना, आजकल हर गांव की लेडी को भी ना रील बनाना आ गया है, तो क्या वो गूगल करके अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं सीख सकती? सीख सकती। तो डेफिनेटली थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा अपने बच्चे के ऊपर टाइम स्पेंड करिए। आप बच्चों को सारी फैसिलिटीज़, फिर से मैं वही बोलूँगी, मटीरियलिस्टिक दे रहे हैं। आपने पैसा पे करके स्कूल भेज दिया, पैसा पे करके कोचिंग भेज दिया, लेकिन आपके पास इतना भी टाइम नहीं है अगर कि आप पूछें कि आज स्कूल में क्या सीखा, क्या पढ़ाया गया। आप पूछते भी हैं तो आपके पास सिर्फ कम टाइम होता है, आप ये पूछते हैं कितना मार्क्स आया, कितना ग्रेड आया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल पेरेंट्स, देयर आर मैनी पेरेंट्स वो जो बहुत मेहनत से 12 आवर्स काम करने के बाद भी टाइम निकालते हैं। आई हैव पेरेंट्स जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं और वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, वहाँ पर टाइम डिफरेंस भी है, लेकिन विदाउट फेल वो रोज़ अपने बच्चे को पूछते हैं आज क्या सीखा, आज क्या पढ़ाया, और कुछ तुमको डिफ़िकल्टी हो तो उसको ऑनलाइन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हैट्स ऑफ टू देम। तो मैं सिर्फ
उन्हीं कुछ परसेंटेज लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने एक फैशन बना लिया है या अपने टाइम को, हाउसवाइफ्स भी हैं या वर्किंग लेडी भी है, आई ऑलवेज बीन अ वर्किंग लेडी, मैंने नहीं अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए कोचिंग के लिए प्रमोट किया, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर आपके बच्चे को उसका टीचर और आप सबसे बेहतर पढ़ा सकते हैं। स्कूल में टीचर और घर पे आप, कोई और XYZ उसको आपसे बेहतर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाएगा। तो प्लीज़ ये कोचिंग का जो फैशन ट्रेंड बन गया है उसको आप देखिए कि कितनी ज़रूरत है। अगर वाकई आपको ज़रूरत लगती है तो डेफिनेटली, लेकिन आप प्री प्राइमरी में बच्चा है, क्लास 1-2 में बच्चा है, उसको क्यों कोचिंग कराना है? बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने, आप बहुत हेफ्टी फीस देके, जैसे आपने कहा बहुत हाई फाई स्कूल में डालते हैं आप, तो आप उस एजुकेशन का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। बिकॉज आप जब 1-to-1 किसी से कोचिंग पढ़वाएंगे तो डेफिनेटली वो क्लास में उसका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चों में मॉरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्क्स स्कोर करने के लिए बच्चे चीटिंग कर लेते हैं, चिट बना लेते हैं, दूसरे से पूछ के आंसर कर लेते हैं, राइट? तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल की या पेरेंट्स की, कि वो चीटिंग ना करें? क्योंकि मैं एक रिसेंट का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है ना, ये स्टूडेंट वेलबींग और कैरेक्टर बिल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग, जैसे मैंने कहा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने पूछा था कि पर्पस क्या होना चाहिए एजुकेशन का, नॉट जस्ट टू गेन मार्क्स, टू मेक देम टीच हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। दैट इंक्लूड्स ऑनेस्टी, that includes empathy, kindness towards others, right? That includes to become a good citizen. हाँ, तो वो चीज़ अगर नहीं आ रही है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में बोला था, 95% मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उस बच्चे काइंड नहीं है दूसरे के लिए, है ना? तो वो आपने जैसे पूछा, स्कूल में मोरालिटी पढ़ाई जा रही है, लेकिन अगर सपोज ऑनेस्टी पढ़ाई बच्चे को और उसने अपने घर पे या सराउंडिंग में देखा, इट इज़ अ वेरी सरकाज़म आई एम मेकिंग, कि डिसऑनेस्टी को रिवॉर्ड किया जा रहा है, हाँ, तो फिर वो टीचिंग या मोरालिटी जो हमने पढ़ाई है वो कब तक सस्टेन कर सकेगी? तो ये पेरेंट और टीचर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, है ना? जैसे कि टीचर ने बच्चे को सिखाया मोरालिटी, लेकिन उसने अपने सराउंडिंग में घर जाकर के देखा रिवॉर्ड पाते हुए डिसऑनेस्टी को। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइब करना कहीं आजकल बहुत सिंपल सी बात है। पेरेंट्स जब आपस में भी बात करते हैं तो वो सोचते नहीं कि बच्चे सुन रहे हैं, हाँ, ठीक है? और एक तो वो चीज़ अगर वो देखेंगे कि इससे तो फ़ायदा हो रहा है या ये रिवॉर्डिंग है डिसऑनेस्टी, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं क्लैश होगा कि जो हमें सिखाया गया है और ये डिसऑनेस्टी को रिवॉर्ड किया जा रहा है, दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ। एंड एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी, पेरेंट्स या टीचर्स कोई भी हो, उनको बच्चे उन एक्शंस को देख करके सीखते हैं, ना कि वो जो वर्ड से बोल रहे हैं, हाँ, ठीक है? तो जैसे कि ये कहावत भी है कि एक्शन स्पीक्स लार्जर और लाउडर देन वर्ड्स। तो डेफिनेटली आप बोलें बेटा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना बुरी बात है, चीटिंग करना बुरी बात है, या ब्राइब करना बुरी बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो खुद ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? या हम मान लीजिए कहते हैं कि आप हमें बिल मत दीजिए, GST बच जाएगा हमारा, फॉर एग्जाम्पल। तो बच्चे ने सीखा, स्कूल में सिखा रहे थे मोरालिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन या कुछ भी, और यहाँ तो उससे फायदा ही हो रहा है, हमारा 4 पैसा बच रहा है उस तरीके से। तो वो क्लैश होता है, फिर वो सस्टेन नहीं करेगी वो मॉरल टीचिंग। तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का रीजन बहुत एंड सोसाइटी ऑल्सो, लेट मी फिनिश, कि पेरेंट्स, स्कूल ने आपको सिखाया लर्निंग, एजुकेशन, पेरेंट्स ने आपको सिखाया सपोर्ट, वैल्यूज़, और सोसाइटी आपको दिखाती है अपॉर्चुनिटीज़ और रोल मॉडल्स। हाँ, तो जो हमारा रोल मॉडल है वो कैसा है, वो भी बच्चे पे, यानी 3 थिंग्स डिपेंड करती है, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड द सोसाइटी। हाँ, और मैम वही मेरे क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना सा मतलब था, और रीज़न भी ये था कि अभी रिसेंटली प्रणीत मोरे का एक शो चल रहा था, राइट? वहाँ मैं ये देख रहा था कि एजुकेशन डज नॉट इंश्योर कैरेक्टर, राइट? उसमें हुआ क्या कि एक बंदा है वो 370 की बिरयानी वसूल कर रहा है, और एक लड़की है जो डेड बॉडी के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रही है, राइट? उसका मजाक उड़ा रही है, किसी ने अच्छे पर्पस के लिए डोनेट किया है और वो बता रही है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स आई वुड नॉट लाइक टू से दिस ऑन माइक और कैमरा। तो उसमें वो उसका फन बना रही है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मॉरलिटी एंड कैरेक्टर,
वो लड़की जो है वो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से होगी, बट उसने 406 मार्क्स ऑब्टेन किए नीट में और उसने एसटी का सर्टिफिकेट यूज़ किया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो वहाँ पे किसी का हक मार रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो अकेले या फिर पूरा सिस्टम फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना? डेफिनेटली पूरा सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, मैंने यही तो कहा, वो मेरे आपसे सवाल से पहले ही मैंने कहा कि जो पेरेंट्स का रोल आपको बता दिया मैंने, टीचर्स का रोल बता दिया, सोसाइटी का रोल है अपॉर्चुनिटीज़ और रोल मॉडल्स। तो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उसको तो वो कैसे कर पाएगी? और It depends नीट on that. पेपर्स जो है हर साल लीक हो रहे हैं, तो अगर हम बच्चों को सिर्फ पढ़ना सिखा रहे हैं और जो बच्चे पेपर आउट कराना सीख ले रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएंगे, हम जो जिसको मेहनत करके पढ़ना सिखा रहे हैं वो तो हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आप इसमें नेगेटिव तो देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और भी आप सोचिए कि पता नहीं कब से लीक हो रहे हैं, हमेशा से होता है। लेकिन एटलीस्ट अब आवाज़ तो उठ रही है, एटलीस्ट अब समझ तो रहे हैं लोग। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ एक दिन आएगा जब ये चीज़ ख़त्म भी हो जाएगी। मतलब जब आपको पता ही नहीं था तो आप वो गलत काम कर रहे थे, लेकिन जब पता हुआ, उसके बारे में आवाज़ उठी, उसके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर तो है ही, लेकिन ठीक है, उसको अब वो इम्प्रोवाइज़ करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आगे आने वाली जनरेशन्स बेटर होंगी। कई बार मेरा बच्चा जब एक स्कूल में पढ़ता था तो मुझे जब उस पर्टिकुलर क्लास में कुछ चीज़ लगती थी कि चेंज होनी चाहिए, और मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो प्रिंसिपल भी बहुत वेलकमिंग थी, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलती थी वो इस चीज़ को, विच इज़ अ वेरी नाइस वर्ड जो मैंने देखा उनकी डायरी में लिखा हुआ था, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि मेरा बच्चा तो यहाँ से पास आउट हो रहा है, लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि आगे आने वाले बच्चों को ये चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं मोरालिटी है, लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारा काम निकल गया तो नहीं, अब क्या करना चाहिए। डेफिनेटली हर चीज़ में अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो बेटर होती जाएगी बहुत चीज़। सो लेट्स एंड दिस सेशन एंड सम दिस अप। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग सिस्टम में सबसे वाहियात चीज़ क्या है, और आपको अगर मौका मिले, नॉट एज अ स्कूल टीचर और पूरा मौका ही मिल रहा है, टू चेंज समथिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूलिंग, व्हाट वुड यू चेंज? बात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि डे बाय डे कुछ ना कुछ अच्छा ही, लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आई वुड से कि लर्निंग जो है, जो एजुकेशन है, शुड नॉट बी अ बकेट, यू नो, दैट फिल्ड विद इंफॉर्मेशन. It should be like lighting a lamp that, you know, that shines and brightens the students throughout their lives. ये चीज़ है, तो उसके लिए हम हर दिन कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बस एक चीज़ जो मुझे लगती है, जो जितनी रैपिड हमारी सोसाइटी मूव कर रही है, पहले हमारी एक्सटेंडेड और जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, अब हमारी न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिलीज हैं, उसमें भी because of the role of this digital distraction which you see, कि मम्मी पापा बच्चे सब, आपने कई मीम्स, कई रील्स देख चुके हैं, एक रूम में बैठ करके 4 लोग अपना फ़ोन देखते हैं। आप रेस्टोरेंट्स चले जाइए, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। आप कहीं भी, आप फ्लाइट्स में जाइए, इफ़ द फैमिली इज़ ट्रैवलिंग टुगेदर या ट्रेन में, दे आर बिजी विद देयर ओन फोन्स, तो वो कहीं ना कहीं बात नहीं करते हैं। तो मुझे जो चीज़ मिस लगती है कि एक मैं चाहूँगी कि वो करिकुलम में ऐड हो जाए, विल बी इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, EQ, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वेश्चन, यू नो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कहीं ना कहीं आज हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ भी रहा है, लेकिन आपको लगता है कि हम जब थे तो हम छुट्टियों में अपने दादी नानी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ रिश्तेदार और इकट्ठा होते थे, कजन्स इकट्ठा होते थे, तो हमें उनसे बात करने की तमीज़ थी, आता था। I am not saying आज बच्चों को I'm not saying कि they are बदतमीज, not well behaved, but चूंकि वो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम कम्युनिकेट ही इतना कम करते हैं कि उन्हें आता नहीं है बात कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है अपने आप को। है बहुत कुछ अंदर वैल्यूज़, बट उसको बात कैसे करना है, इतने अच्छे से एक्सप्रेस कैसे करना है अपने आप को, हर जनरेशन के इंसान से कैसे बात करना है, वो नहीं आता है उन्हें। तो वो कहीं ना कहीं सिखाने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली जब सिखाना है तो लर्निंग ऑलवेज शुड स्टार्ट फ्रॉम स्कूल इटसेल्फ। तो डेफिनेटली अगर इमोशनल क्वेश्चन हम ऐड कर सकें तो दैट वुड बी रियली रियली ग्रेट, एंड दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। एंड एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो
if you want a better future, we need to invest in a better education today. And better education is just not preparing students for one examination or some kind of a competition. We should prepare them for the, Life. how to face life, how to face all the, stages of life. So this is, like in my perspective, this is the true education. Yeah. So guys, you have understood the purpose that matters. और आज हमने बात की the purpose of education, that we do not only have to focus on examination, we have to focus on life and how to behave in life and How to think and not what to think. how to think and not what to think, exactly as ma'am said. तो आपके साथ बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा मैम. दिस इज़ द इनिशिएटिव जो मैंने गोरखपुर में लिया है, एंड बिकॉज मैं चाहता था कि गोरखपुर में एजुकेशन पे बात हो. एंड देयर आर मल्टीपल गुड स्कूल्स एज वेल. आई हैव विजिट सो मेनी स्कूल. बहुत सारे स्कूल्स में मैं गया जहाँ पे माहौल अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, दे आर लर्निंग गिटार. सॉरी टू से मैं बोलूँ, कैटेगराइज मत करिए. बहुत से लोगों की आदत होती है उस पर्टिकुलर स्टेट को बोलते हैं वो ऐसा है, वो पर्टिकुलर सिटी ऐसा होगा. नहीं, आप एक्सप्लोर करिए, आपको लगेगा कि बहुत बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अच्छे स्कूल्स भी हैं हमारे यहाँ, और अच्छे पर्टिकुलर टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो कि एक स्टेप आगे जाते हैं वो बच्चे को डेवलप करने के लिए. वही बात है मैं, क्योंकि बाहर की चीज, बाहर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो चीज़ें दिख के आती हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, वहाँ के लोग के पास एक्सपोजर होता है तो दे कम आउट, राइट. बट हमारे गोरखपुर में ये एक्सपोजर है नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं करता है. यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है हमारे साथ, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं, हम वो दिखाएंगे तभी लोग जानेंगे, और तभी उनका जो क्या कहते हैं माइंडसेट है वो चेंज होगा जब वो देखेंगे. तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस शो, एंड दैट इज़ वाई द पर्पस दैट मैटर्स इज हियर. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर It was really nice talking to you. Thank you, ma'am.